और सभी को मेरा प्रणाम। परम आदर और सम्मान के रूप प्रोफेसर एस सुशील कुमार तोमर सर, प्रोफेसर हरीश शर्मा सर, प्रोफेसर बी के कुठियाला सर, डॉक्टर प्रदीप तिवारी जी, my colleagues and dear all participants, आज मैं एक महत्वपूर्ण जो हमारा ऐतिहासिक जो एक हत्याकांड हुआ, जो नरसंहार हुआ हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जिसका सीधा सीधा संबंध है, उसका साइंटिफिक वे में आज पोस्टमार्टम करेंगे। मेरा सभी से यही अनुरोध है कि भी मैं हिस्टोरियन नहीं हूं, मैं एक फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूं और मेरा हिस्ट्री से अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स अगर आपको लगे कि भी मेरा कुछ वो है तो प्लीज मेरे को माफ करना। ऑल ऑफ अस नो दैट फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 is considered as a glorious and revolutionary event in Indian history. Basically, it was an armed rebellion against the East India Company rule in India, which started from Meerut and spreading to Delhi, Agra, Kanpur, Lucknow, and other cantonments. The most immediate region, as far as the Sepoy Mutiny of 1857 is concerned, it was against the use of beef and pork greased cartridges. And after this lecture, all of you will be enlightened to know how scientific evidences they endorse or refute the historical narrations about certain events. So the topic of my today's जो मेरी आज की वार्ता का जो मुख्य जो विषय है वो है फॉरगॉटन वॉरियर्स ऑफ 1857, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। हम सभी जानते हैं कि भी जो मानवता जब से धरती पे आई है, क्योंकि हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुठियाला सर जानते हैं कि भी हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मेन काम जो हमारी जो ओरिजिन है धरती के ऊपर मानवता का, हम उससे लेकर आज तक उसके डिफरेंट पहलुओं को पढ़ते हैं। तो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली हमारा थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट भी होता है। इसलिए यू विल सी दैट मैनकाइंड हैज विटनेस्ड सेवरल एपिडेमिक्स, वॉर्स, जीनोसाइडल कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिस्ट massacres, heinous crimes and other heinous crimes against humanity. And these heinous crimes and brutalities have decimated humanity throughout the human history. Large-scale war crimes, genocides, violent cruelties committed against humanity have been reported from various parts of the world, including Guatemala, Spain, East Timor, Croatia, Cambodia, Rwanda, Iraq, Iran, and even US. You will see in the form of World Trade Center attack of 2003. Where thousands and millions of the innocent people, including civilians or militarists, have been killed. And you will find that the pre-existing structure, जैसे पुराना कुआं पड़ा हुआ है, कोई सीवेज सिस्टम है, पोर्ट होल्स हैं, केव्स हैं, रोड साइड ट्रेंचेज हैं, they have remained at the preferred burial sites for clandestine disposal of human cadavers to avoid attention of the international human rights watch groups, or you can say organizations. And we as forensic anthropologists endure to bring closure and comfort to the bereaved families by disseminating information about the location, exhumation, and identification of human remains of the victims and facilitating their dignified burial. We help us to reconstruct the nature and mechanism, intent and purpose, manner and circumstances of various inhuman instances of genocides and violent crimes. We have played a significant role in recovery and identification of the victims of many war crimes, whether it belongs to the Napoleon massacre of the sepoys of Napoleon army or some other armed rebellions or other genocides, racial conflicts, violent cruelties committed against mankind in the modern history. And you will see that after this lecture you will find that बोन जेनेटिक्स, जो दांत और हड्डियां होती हैं,
क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू वो डिकम्पोज हो जाता है, दैट विद इन 3 months ऑफ burial of a dead body, it turns into a skeleton. So 3-4 महीने के अगर नॉर्मल कंडीशंस में, हालांकि जो ठंडा गर्म की जो कंडीशंस हैं वो उसको प्रोलॉन्ग कर सकती है, उसको जल्दी कर सकती है, लेकिन 3 महीने में स्केलेटन बन जाता है अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर अवेलेबल इन द scientific papers. So you will find that the bones and teeth, they have the longest postmortem longevity, and they serve as the crucial markers of human form and identity after death. These bones and teeth, they serve as vital signature of identity of the deceased, as their physical structures, molecular signatures, chemical compositions retail some individualistic features, and they have been increasingly used to figure out the biological profile, you can say, identity of the individual or people who lived in the past. Hundreds and thousands of unknown human skeletal remains, they have been retrieved from different forensic contexts, and basically they pose a very serious challenge for their identification, particularly when the remains are badly damaged, fragmented, and disgraciously commingled. So as far as the last point is concerned, so हमारे को 2014 में कुछ ऐसे ह्यूमन रिमेन्स ही प्रोवाइड कराए गए जिनका हमने आइडेंटिफिकेशन करना था। हमारे को जो थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन रिमेन्स which were supposedly belong to the that massacre of Ajinala of 1857. Now I will give a brief account of Ajinala skeletal remains की भी Ajinala skeletal remains की जो brief history है वो आप एक 5-7 पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली इन रिमेन्स के बारे में सबसे पहले 2013 के लास्ट में पता चला जब कोई स्कॉलर इंग्लैंड गया और उसने ब्रिटिश हिस्ट्री म्यूजियम को खंगाला कुछ अपने इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड डाटा के लिए, तो ही और सी एज फार एज माई इंफॉर्मेशन सी वाज स्कॉलर फ्रॉम GNDU, बट इट इज नॉट कंफर्म। सो उसने देखा कि भी पंजाब से रिलेटेड एक बुक वहां सेल्फ में पड़ी हुई है जिसका नाम था क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम 10th of May until fall of Delhi। तो उसमें देखा कि भी पंजाब लिखा हुआ है लंदन में जाके, तो उसने वो बुक पढ़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सो उसने उस बुक को फोटोकॉपी किया और वो हरीडली केम बैक टू इंडिया, और उसने वहां जाके कि वो अजनाला से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने वहां जाके बताया कि भी जिस गुरुद्वारे को आप पूजा कर रहे हैं उसके नीचे तो हजारों स्केलेटल रिमेन्स दबे हुए हैं। तो लोगों ने किसी ने उसका विश्वास नहीं किया, क्योंकि साइमल्टेनियसली मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि भी साइमल्टेनियसली नाव में भी एक ऐसा चल रहा था कि भी किसी बाबा ने बोला था कि भी यहाँ हजारों टन का सोना दबा हुआ है। इसको जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जो पिछली गवर्नमेंट थी मनमोहन सरकार की, तो उन्होंने पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो ये दोनों इश्यू साइमल्टेनियसली चल रहे थे, इसलिए लोगों ने विश्वास नहीं किया कि भी ये सच है कि झूठ है। सो सारा जो मेंशन था वो इस बुक में जो आज इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। क्राइसिस इन पंजाब फ्रॉम 10th of May until fall of Delhi, a deeply disturbing and self-congratulatory account of the killing of the 282 Indian soldiers from the 26th Native Bengal Infantry Regiment of the British Army in India was mentioned in this book, which was authored by the British Administrator of Amritsar, Mr. Frederick Henry Lee Cooper। आप सभी को पता है कि भी 10 मई 1857 से मेरठ से मंगल पांडे के जो अगुवाई में जो आर्म्ड रिबेलियन शुरू हुआ था वो डिफरेंट कंटेनमेंट्स में स्प्रेड हुआ। तो उसी तरह जैसे दिल्ली में आया, लखनऊ में आया, तो हर जगह वो रिबेलियन हुआ। तो उसी रिबेलियन के संदेह के चक्कर में जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, क्योंकि जो मेन जो सैनिक होते थे वो इंडियन होते थे, जो ऑफिसर्स थे बेसिकली वो मेरे हिसाब से वो ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द कंटेनमेंट्स में जो सिपाहीज को डिसआर्म कर दिया कि भी उनके सारे हथियार छीन लिए कि सो दैट कि वो कोई रिबेलियन ना करे और इस तरह। सो मीर कैंट एरिया जो आज पाकिस्तान में है, तो वहां पर भी these 500 soldiers from this 26 native infantry जो बंगाल इन्फेंट्री बटालियन थी, जिसमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन बुक में भी लिखा हुआ है कि भी इसमें जो सोल्जर्स थे वो बंगाल, बिहार, ईस्टर्न यूपी
और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एटसेट्रा से उसमें आते थे। जैसे आजकल भी टिपिकली जैसे सिख बटालियन है, गोरखा रेजिमेंट है, या जो जाट रेजिमेंट है, या तो उसमें जो लोग हैं वो उन्हीं एथनिक एट्रीब्यूशन से सपोज्ड होते हैं कि वहीं से आएंगे, लेकिन आजकल मिक्स हो गया। लेकिन पुराने टाइम में जो अंग्रेजों ने ये बनाई थी ये बटालियंस, बेसिकली उसमें उसी रीजन्स के लोग होते थे। तो उस बुक में लिखा हुआ है कि जो 26 नॉर्थ इन्फेंट्री बटालियन के लोगों को उन्होंने डिसआर्म कर लिया। और इसका जिक्र इस बुक में भी नहीं, बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पेपर्स हैं जिसको ईस्ट इंडिया पेपर्स भी बोला गया है, पंजाब गजेटियर्स हैं, और एक 2017 में जब ये सारा सब कुछ हुआ गया उसके बाद भी एक बुक आई है जो बेट्स एंड कार्टर ने लिखी है जिसका नाम है म्यूटिनी एट द मार्जिन्स, न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द इंडियन अपराइजिंग्स ऑफ द 1857। उसमें भी इन 282 जो इंडियन सोल्जर्स जिनको पूर्बिया सैनिक बोला है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले को अब आजकल भी हम पूर्बिया जैसे बोलते हैं, तो 282 इंडियन पूर्बिया सोल्जर्स ऑफ सैन इन्फेंट्री बटालियन who fled from the Mir Kent area after killing their British commanders, though they were caught on the banks of the heavily flooded river Ravi on 31st July 1857। बुक में भी इन सारे रिकॉर्ड्स में ये बिल्कुल कोहेरेंट है, सभी में एक सारा सब कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली उन्होंने उनको डिसआर्म कर दिया। तो उसी एंगर में और एक जो इमरजेंट रीजन था कि भी वो जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस नहीं यूज करेंगे, तो वो एक डिसआर्म कर दिया। तो उसी एंगर के चक्कर में उन्होंने सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया और वो वहां से भाग गए। तो उस टाइम इतना कम्युनिकेशन का इतना सोर्सेज नहीं होता था, तो ब्रिटिश फोर्सेस के पास जो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने सोचा कि वो इंटीरियर पाकिस्तान की तरफ भागे। उस टाइम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। उन्होंने सोचा कि वो साउथवर्ड भागे, उधर भागे वेस्टवर्ड, लेकिन दे कम दिस साइड। एंड उनका इंटेंशन जैसे बुक में भी लिखा हुआ है, हर जगह जो इंटरप्रिटेशंस लिखी हुई कि उस तरफ यही था कि भी दे वांटेड टू एंटर J&K बिकॉज J&K वाज नेवर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। लेकिन वो वहां से भाग के दिन रात जंगलों में से रावी नदी के किनारे पे आ गए। तो रावी नदी वाज हेवीली फ्लडेड एट दैट टाइम, सो दे आस्क्ड फ्रॉम द लोकल पीपल हाउ टू क्रॉस दिस रिवर, but those people, instead of telling them the right path, they informed the British commissioner at अमृतसर, मिस्टर फ्रेडरिक ली कूपर को, हेनरी कूपर को बता दिया कि जो आपके सोल्जर वहां से भागे हुए हैं वो हमारे कब्जे में हैं। सो दे बार्गेन्ड विद देम। इट इज मेंशन्ड इन द बुक, दीज आर नॉट माय ओपिनियंस, माय वर्ड्स, इट इज मेंशन्ड इन ऑल द रिकॉर्ड्स दैट दे बार्गेन्ड विद द ब्रिटिश फोर्सेस। एंड जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इसलिए उन्होंने वो जो भी उनका हुआ होगा, आई डोंट नो अबाउट दोस थिंग्स, इट इज नॉट माय एरिया ऑफ इंक्वायरी। सो उन्होंने उनसे पूछा कि भी आप बताओ वो कहाँ। उन्होंने बताया कि वो वहां पर हैं। तो उन्होंने सारा लोकल फोर्सेस, क्योंकि वो तो वहां से कोई फोर्स लेके थोड़ी आए थे, तो यही से जो लोकल रियासतदार थे उन्हीं की आर्मी, उन्हीं के जो किसी के पास 500 सैनिक, किसी बाजार अलग अलग होंगे, तो सारे इकट्ठे कर करा के उन्होंने वो सारे वो रात को उन्होंने पकड़ लिए। 3-4 बजे उनको रात को पूर्व जो धोखे से पकड़ा उनको। बेसिकली उनको कहा कि भी आपके साथ हम कोर्ट मार्शल करेंगे, अगर आपका रीजन जेन्युइन हो तो हम छोड़ देंगे, जैसे बुक में भी लिखा हुआ है कि भी। और वो भी, लेकिन कुछ जो उनमें समझदार लोग थे, समझदार इन द सेंस कि भी जो बिल्कुल जिनको पता था कि भी पकड़ेंगे तो मारेंगे जरूरी, इसलिए वो कुछ लोग है ना उसमें से, जैसे बुक में लिखा हुआ है 150 लोग वो पानी में कूद गए इस इंटेंशन के, शायद अगर बच गए तो बच गए, अगर डूब गए तो डूब गए, मारेंगे तो ये भी। So, इसलिए out of 500 sepoys, 282 were caught alive by British Royal Forces, and 150 weakened, famished, fatigued mutineers were moved backwards away into the river and drowned inevitably. Though it has claimed in the book that 41 की लिखा हुआ है कि 41 से उनको जो जिंदा थे, 1 महीने के बाद जो रावी नदी के आसपास जो गांव लगते हैं उन गांव से 41 लोगों को उन्होंने पकड़ लिया और उनको भी मार दिया। और उनमें से एक आदमी को उन्होंने जिंदा भी पकड़ा, जिसको ब्रिटिश से जो क्वीन थी जो इस्लामाबाद में आई थी, क्वीन विक्टोरिया, इससे फर्स्ट जो फ्रीडम स्ट्रगल को दबाने के को सेलिब्रेट करने के लिए इस्लामाबाद में आई थी, तो वहां पर उसको कैनन से उड़ाया गया था और उसके सिर को जो है वो उसको भेंट किया गया था। और वो सिर जो स्कल है जो मिस्टर आलम बेग था इनका, तो उसको भी हमने ट्रेस कर लिया है, तो दैट वाज गिफ्टेड टू द क्वीन विक्टोरिया। और नाउ दैट स्कल हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम ए पब इन लंदन इन December 2000
December 2019 that skull has been recovered. That person was from Kanpur. उसका सारा सब कुछ लिखा हुआ है. तो that skull is also on the way to back to our laboratory at Punjab University. The doomed man with their tightly उनके हाथ बांध के अगले दिन 10-10 लोगों को उनमें से 2 थे 237 को एक जनाला पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया. बाकी जो बच गए जो 45 थे उनको एक बाथरूम जैसा एक स्ट्रक्चर था तो उसमें उनको बंद कर दिया. तो अगले दिन 237 को 10-10 करके उनको बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से उनको गोली मार के उनको पत्थर की गोलियां थी हमारे पास सारा सब कुछ है तो वो उनको 10-10 करके उनको मार दिया. सो और ऑल द कॉर्पसेस वर ड्रॉप्ड इनटू ए 20 फीट डीप ब्रिक्ड ड्राइड एंड अबैंडन्ड वेल जिसको उसने नाम दिया कलियावाला को बिकॉज वो हमारे को ब्लैक पीपल मानते हैं. आज भी जैसे यू विल सी कि कमला हरीश जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट है उसको ये ब्लैक पीपल ब्लैक माना है तो उस टाइम भी वो हमारे को ब्लैक मानते थे. हालांकि वो यूएस है लेकिन यूरोप और अमेरिकाज में हमारे को ब्लैक ही काउंट करते हैं आज भी. तो इसलिए उसका नाम उन्होंने कलियावाला को ब्लैक का वेल ऑफ ब्लैक्स. तो 45 जो म्यूटिनियर जो लोग थे जो दूसरे छोटे से उन्होंने जाके देखा किसी ने बताया कि भी वो मारते मारते थक गए 10-10 करके. तो उसके जब वो 237 पूरे हो गए तो किसी ने उन्हीं के उसने जो था जो मुखबिर था उनका तो उन्होंने बताया कि जो 45 भी वो दूसरे उसमें बंद हैं. तो वहां जाके देखा तो वो तो भूख प्यास और गर्मी और जो हाइपोक्सी कंडीशंस की वजह से स्टोकिज्म की वजह से वो मरे जैसे ही हो गए थे. इसलिए उन्होंने उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ी. उनको ऐसे ही कुएं में डाल दिया. पहले 237 को डाला फिर 45 को डाला. और जब तक उन्होंने मिट्टी का अरेंजमेंट किया क्योंकि उस टाइम डंपर एक्सेट्रा जो आजकल फैसिलिटीज वो नहीं थी तब तक उन्होंने उनको कुएं को भरने के लिए क्योंकि आपको अभी दिखाएंगे तो जब तक कुएं को मिट्टी से भरने का इंतजाम किया तो सम ऑफ दोज पीपल जो 45 में से उनको होश आ गया एंड दे ट्राई टू कम आउटसाइड ऑफ द वेल. उन्होंने एक दूसरे के कंधे पर ऊपर बैठ के कुएं से बाहर आने की कोशिश की और लेकिन वो इतना दर्दनाक और वो जो हमने देखा है मेरे पास वीडियो भी है और वो 11 के 11 स्केलेटन खड़े मिले हैं चार दीवारी के साथ कुएं की दीवारी चार दीवारी के साथ. सो वो 11 के 11 लोग थे वो उन्होंने दे ट्राई टू कम आउटसाइड. सो ये सारा उसके बाद उन्होंने मिट्टी से भर दिया और मिट्टी से भर के ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और उस स्ट्रक्चर को बेसिकली गुरुद्वारा साहिब का नाम दिया बाद में और उसके ऊपर एक ट्यूमुलस एक बोर्ड लगा दिया कि उस पर लिखा था मुफ्स कि भी ये जो मुफ्स दिगार्स हैं जिसको हम रिबेल लोग बोलते हैं वाज इरेक्टेड विद द वर्ड रिबेल ग्रेव कि भी ये रिबेल्स की ग्रेव है. That was imprinted in tall capital letters over the masonry in Persian, Gurumukhi and English. वो अंग्रेज शातिर थे उनको पता था कि भी हिंदुस्तान में रिलीजियस सेंटिमेंट्स को छूना बारूद से हाथ लगाने के बराबर है. इसलिए उन्होंने क्योंकि दे हैड रूल्ड मतलब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तो उन्होंने पूरी भांप लिया था कि भी आने वाली जनरेशंस के लिए ये कि भी इस जो जघन्य अपराध हमने किया है उसके बारे में जान नहीं पाएंगी. तो इसलिए उन्होंने वो रिलीजियस स्ट्रक्चर खड़ा किया और दैट रिलीजियस स्ट्रक्चर वाज वर्शिप्ड बाय द लोकल पीपल टिल 2014. और नेक्स्ट ईयर जो फ्रेडरिक हेनरी कूपर था जो ब्रिटिश कमिश्नर था जिसके सुपरविजन में ये सारा काम हुआ ही वाज शिफ्टेड टू इंग्लैंड विद हायर पोस्ट. और वहां बैठ के उसने 1858 में एक बुक लिखी जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है और उस बुक में उसने सारा ये मेंशन कर दिया कि भी मैंने ऐसे ऐसे कृतघ्न वो काम किए हुए हैं हिंदुस्तान में. तो वो बुक 1858 से 2014 तक इंडिया में आई ही नहीं. सो ये बुक में जो हेरोइन कोड्स खुद उसने लिखे हैं not to fire was ordered by the district officer and these accidental instructions had an instantaneous effect on the mutineers and they were possessed with a sudden and insane idea that they were being tried for the court martial after some luxurious refreshment. मतलब जब वो नदी में उनको ब्रिटिश फोर्सेस को देख के जो हमारे जो सिपाहीज थे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के जो रावी नदी के दूसरे किनारे पर वेट कर रहे थे टू क्रॉस करने के लिए तो इंस्टेड ऑफ कि भी उनको रास्ता बताएं तो वो दे वर सरप्राइज टू सी द लॉयल फोर्सेस टू कैच देम. तो जब वो नदी में कूदने लगे तो और जब
जो लॉयल फोर्सेस थी उन्होंने अपनी गन जब तान ली उनके ऊपर, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने, जो एक मुस्लिम तहसीलदार था, उसने कहा कि नॉट टू फायर, फायर नहीं करना है। तो उस ऑर्डर को देख के जो हमारे म्यूटिनियस सोल्जर्स, उन्होंने सोचा कि दे आर गोइंग टू हैव ए कोर्ट मार्शल ऑफ अस, एंड तब तक हम लग्जरियस रिफ्रेशमेंट, तो उन्होंने सोचा कि भी हमें बख्श देंगे। दूसरी जो बात थी, सम म्यूटिनियर्स दे बैक्ड देयर वुमेन एंड चिल्ड्रन माइट बी स्पेयर्ड। उन्होंने क्योंकि उनके साथ वो भी रहते थे यार, तो उन्होंने कहा कि भी हमारे बच्चों को और हमारी जो फीमेल्स है उनको बख्श दिया जाए। तो उन्होंने ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिडंट कंसेंट टू वार विद द वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो ए डीप वेल वाज डिस्कवर्ड विद इन 100 यार्ड ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड इट्स प्रेजेंस फर्निश्ड ए कन्वीनिएंट सॉल्यूशन। ये सारी वर्डिंग बुक में उस राइटर फ्रेडरिक हेनरी कूपर की है। furnished a convenient solution to the remaining difficulty of sanitary consideration to dispose of the corpses of the dishonored soldiers by the village sweepers। क्योंकि जब ढेर लगा दिया तो उनके लिए ये दिक्कत आ गई कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे। तो वहां के जो आसपास के जो स्वीपर्स थे, जो 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 विच वर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, उन्होंने कहा कि कुआं पड़ा हुआ जी, वहां डाल दो, ये सारा सब निमट जाएगा। ये जो लास्ट की बात जो लिखी है, सच एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन इमीडिएट एंड ट्रेमेंडस एग्जांपल नेवर प्रेजेंटेड इटसेल्फ बिफोर एंड माइट नेवर डू सो अगेन। ये खुद एक्चुअली हेनरी कूपर था, वो एक मैसेज कन्वे करना चाहता था जो म्यूटिनियस सोल्जर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, की भी ऐसा काम मैं करने जा रहा हूं जो पहले नहीं हुआ और ना ही कभी आने की फ्यूचर में करने की कोई जरूरत करेगा। तो ऐसा ही उसने कि हो सकता है कि ऐसे कांड हिंदुस्तान में पता नहीं कितने मंदिर मस्जिदों के नीचे कितने ही ऐसे स्केलेटल रिमेन्स दबे पड़े होंगे उनके द्वारा मारे हुए लोगों के। लास्ट वीक आई वाज इन कन्वर्सेशन ऑन टीवी एंड ऑन रेडियो विद एंड सम सोल्जर्स, रिटायर्ड सोल्जर्स फ्रॉम पंजाब, दे कॉल्ड मी डायरेक्टली दैट कि हमने बीकानेर में फलानी जगह ये देखा वो देखा, बट उनको ट्रेस करने के लिए अब वो रिलीजियस से जो प्लेसेस को छूना मुश्किल है। लेकिन जो अनसाइंटिफिक एक्सक्यूशन, क्योंकि हम कभी भी इस एक्सक्यूशन में नहीं आए, तो क्योंकि ये सारा बुक में लिख दिया और जब लोगों ने पढ़ लिया और सारा मीडिया में आ गया, तो गवर्नमेंट ने रिलाई नहीं किया कि ये सच है। इसलिए लोकल लोगों ने उसको सारी खुदाई की और दे वर नॉट द ट्रेन्ड एनाटॉमिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो कि हर एक स्केलेटन को इंडिविजुअली निकाल लेते, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज को तो ये पता था कि वे सब झूठ है। लेकिन जब उनको निकाल के बाहर रख दिया, देन गवर्नमेंट केम इनटू एक्शन। गवर्नमेंट ने रिलाई क्यों नहीं किया? तो वो इसलिए था कि भी एक उन्नाव गोल्ड ट्रेजर इंसिडेंट था जिसमें ये शोभन सरकार एक संत था। ही ड्रीम्ड ऑफ द गोल्ड एट राजा राम बख्श सिंह फोर्ट एट डांडिया खेड़ा विलेज है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पर उसने कहा कि मुझे एक सपना आया, इस मंदिर के नीचे हजारों टन सोना दबा हुआ, आप उसको खोद लो और हिंदुस्तान की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और हमारे पिछले जो भारतीय सरकार थी उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा बाबा, और उसकी बात को मान के आर्कियोलॉजिकल सर्वे का पूरा ताम झाम वहां लेके गए। 10-12 दिन उन्होंने खुदाई की, कुछ नहीं निकला। So even he demanded amendment to the Indian Treasure Act so that the required gold could be handed over to the Reserve Bank of India. The excavation work began on 18 October 2013, and on 29 October, the ASI announced that there was no gold buried in the location, and the excavation was abandoned, and the saint flee away from the site. And this is the picture of that particular Baba, and this is the temple, and this is the media coverage to that incident. So basically this is the I will not show you the picture of the earlier structure because of some restriction imposed by the government authorities and religious sentiments of certain sector of our society. तो मैं पुराना स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये नया गुरुद्वारा बनाया। तो उसके बाद हुआ क्या कि उन लोगों ने बुक पढ़ के लोगों ने कहा कि भी जिस गुरुद्वारे को पूज रहे हो ना आप, इसके नीचे तो हजारों स्केलेटल रिमेन्स हैं। तो उस टाइम जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोकल जो थे उन्होंने कहा कि भी नहीं, आप हाथ नहीं लगा सकते। देन ए पर्सन हु हैपेंड टू बी सर्व इन सेक्रेटरीट इन चंडीगढ़, ही रिटायर्ड एंड देन वो उसका हेड बना। तो उनको जाके उसको समझ में आ गया कि भी ये मेरा 1857 का जो जर्जर गुरुद्वारा है, तो मेरा नया गुरुद्वारा भी बन जाएगा
और इनकी भी जो इनकी जो क्यूरियोसिटीज हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, मिलना मिलाना कुछ है नहीं। तो ही अलाउड, उसने कहा कि पहले मेरा नया गुरुद्वारा बनाओ, उसी के बाद मैं इस गुरुद्वारे को या जो भी स्ट्रक्चर था इसको हाथ लगाने दूंगा। देन आपको पता ही कि पंजाब के लोग जो डोनेशंस में सबसे वर्ल्ड फेमस हैं, क्योंकि दे आर सो, जो लोकल सिख कम्युनिटी और अदर पीपल ऑफ पंजाब, दे आर पॉइनियर इन डोनेशंस। सो दे कार सेवा करके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और इतना भव्य गुरुद्वारा बनाया। कुछ पोर्शन आपको इस फोटोग्राफ में पीछे दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने गुरुद्वारा बनाया, गुरुद्वारा बना के फिर उस पुराने जो गुरुद्वारे से जो भी मटेरियल था वहां शिफ्ट किया, गुरु ग्रंथ साहब जी को वहां ट्रांसफर किया गया, वहां शिफ्ट किया, और सारा सब कुछ विदाउट किसी भी रिलीजियस या किसी भी विदाउट hurting any sentiments of any people concerned with that old structure. Everything was shifted to the new place, and this is the picture which is shown, which show the new Gurdwara. And उसके 10-12 फीट जाके खोदा, 10-10.5 फीट के इसके ऊपर मिट्टी थी, जो आपको ये राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है वेल, तो इसके 10 फीट ऊपर मिट्टी थी, और मिट्टी के ऊपर वो रिलीजियस स्ट्रक्चर था। तो जैसा बुक में लिखा हुआ था, स्टार्टिंग यहीं से शुरू होगी। उसने बोला था कि इस साइड से दीवार टूटी मिलेगी, इतनी टूटी मिलेगी, इतनी ईंटें हैं, इतनी डायमेंशंस हैं, वेल एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक कि भी इतनी डायमेंशंस का है, इस साइड से दीवार टूटी मिलेगी, इतनी ईंटें, इतनी छोटी छोटी ईंटें हैं, आपको इतनी गहराई से मिलेगा, राइट साइड में इतना खोदने से इतना वो करने, तो एवरीथिंग वाज। तो जब ये मिल गया, देन दे कन्वीन्ड ए सर्वधर्म सभा, सर्वधर्म सभा कराई गई, क्योंकि फिर ये सर्टन था कि भी जैसा बुक में लिखा सारा सब कुछ मिलेगा। तो सर्वधर्म सभा में ये लेफ्ट साइड के जो फोटोग्राफ्स है, इसमें सर्वधर्म सभा हो रही है। बिफोर एक्सक्यूशन ऑफ द वेल एवरीथिंग वाज अटेम्प्ट, क्योंकि उसमें जो लोग थे 282, वो सभी धर्मों के लोग थे उसमें। जैसे उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, फ्रॉम ऑल सेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, दे फॉर्म दैट पार्टिकुलर बटालियन। तो इसीलिए और उसके बाद ये जो पिक्चर है, ये जब कुआं खोद दिया पूरा, और जो आपने ये व्हाइट जो लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ तक स्केलेटल रिमेन्स थे, और ऊपर तक जो एक साइड में इसमें वहां तक एक साइड में ज्यादा वो, क्योंकि गिराए उधर से थे, उधर से दीवार टूटी गई। तो दिस इज द एक्सक्वेटेड वेल। जब इसमें से सारे रिमेन्स, कॉइल्स, मेटल सब कुछ निकाल लिया, तो उसके बाद ये वेल है। एंड दीज वर द स्केलेटल रिमेन्स। ये हड्डियां, दांत और जो खोपड़ियां हैं, ये उस कुएं से मिली, और यू विल सी दैट इतनी बैडली डैमेज्ड हैं, क्यूमिंगल्ड हैं, और मल्टीपल इंडिविजुअल्स की इसमें हैं। तो अगर हम एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट वहां होते, या एनाटमिस्ट होते, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते, आर्कियोलॉजिस्ट होते, अगर गवर्नमेंट रिलाई कर लेती वहां की तरह, तो आज जो इनकी दुर्गति हुई है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि भी एक क्राइम तो अंग्रेजों ने किया 1857 में, और दूसरा क्राइम हुआ 2014 में, जब इन लोगों को निकाला गया। क्योंकि अगर इनको साइंटिफिक वे से निकाल लेते, तो हम इनकी आइडेंटिटी स्टेब्लिश करने में, कि हमें पता है एक आदमी 206 हड्डियां होती है, तो वी आर एक्सपर्ट एनफ, वी एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर एक्सपर्ट एनफ कि भी हमें एक बंदे की हड्डियां कलेक्ट करनी चाहिए, हमें एक स्केलेटन को निकालने के लिए चाहिए हमें 20 दिन लगते हैं, बट हम इंडिविजुअल इंटेक्ट स्केलेटन निकालते हैं। क्योंकि ये लोग हैं, हम, हालांकि इन्होंने ये पिक्चर्स उन्हीं द्वारा प्रोवाइड की गई है, बड़ा अच्छा प्रयास था उनका भी, बट क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, कि भी ये ढेर इकट्ठा करना इंपॉर्टेंट नहीं था, कि भी इंडिविजुअल की हड्डियां को असेंबल करना इजी था। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी एक्शन में नहीं आई, कि भी जब सारा सब कुछ सच्चाई रिवील होने लगी, अगर ये स्टार्टिंग में ही इसको रोक के हमारे को दे दिया जाता है, किसी भी फोरेंसिक इंस्टीट्यूट को, या एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट को, या एनाटॉमी डिपार्टमेंट को, या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को दे दिया जाता, तो आज ये जो दुर्गति आपके सामने हो रही है, कि भी इतने टूटी फूटी हड्डियां और इतना वो निकला पड़ा है, we are facing a जो मैंने लास्ट स्लाइड में कहा कि badly damaged human remains, they pose a very serious challenge for their identification pursuits. But still you will see that we have done our best efforts to identify these sequoias from our own resources. You will see again these pictures, the left pictures show the badly damaged skulls and the long bones, और राइट साइड में भी देखो आप
पूरा कूड़ा करकट करके रखा हुआ है। तो it is very difficult to assign each and every skeletal element to a particular individual skeleton. It is a very tedious work. You will see that कि भी ह्यूमैनिटी का सामने है कि भी कैसे उन सोल्जर्स के जो स्कल्स हैं, हड्डियां हैं, दांत हैं, जैसे बेचारों के कैसे पड़े हुए हैं आपके एक टब में, प्लास्टिक के टब में दे दांत, और ये जो मैंडिबल्स हैं, ये बोन्स हैं। तो बेसिकली ये हमारे लिए ट्रेजर है। एज ए फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट दिस इज ए ट्रेजर फॉर अस। हालांकि अगर हड्डियां भी होती तो हमारे लिए वो सोने पे सुहागे वाली बात थी, लेकिन स्टिल दिस टब कंटेनिंग द टिप is very important for us because teeth are the most important evidences कि भी हजारों सालों तक भी अगर दांत पड़ा रहेगा मिट्टी में, अगर उसका एनवायरनमेंट ठीक है, तो उसका डीएनए, उसका केमिकल कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चरल जो उसकी कंफर्मिटी है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती। और हम दांत एक ऐसी चीज है कि दांत के बेस पे हम उसकी पूरी ओस्टियोबायोग्राफी लिखते हैं। एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट वी आर एक्सपर्ट एनफ टू राइट द ओस्टियोबायोग्राफी ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द टीथ ओनली। इसी दांत का जो डीएनए होता है वो इतना वेल प्रोटेक्टेड होता है, उसमें कंटेमिनेशन होने के बिल्कुल चांस नहीं है। आपने देखा होगा कि इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी एंड इट इज दिस इनेमल विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और लॉन्गिविटी टू द टीथ। एंड बीच में क्या हुआ कि भी जब कुआं खोद रहे थे वो लोग, तो बीच में बारिश हो गई तो वो स्टॉप करना पड़ा। तो यू विल सी कि भी बारिश के पानी जो कुएं के अंदर गया हुआ है, तो आप देखें लेफ्ट और राइट साइड में कैसे स्कल्स और कैसे उनकी जो लोअर जो लेग्स हैं और उनका फुट की जो बोन्स हैं, कैसे वो मिट्टी में बिल्कुल इम्प्रिंट बन के दी जाता। बेसिकली impregnated evidences of the barbarism committed by the Britishers during 1857, क्योंकि उन्होंने तो डेड बॉडी ऊपर से एज ए गाय भैंसों की तरह फेंकी थी उन्होंने। तो वो सारी चीजें ये these are the impregnated evidences of barbarism according to me. You will see, you आपका भी दिल इनको देख के दहक रहा होगा कि भी कैसे जो हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे देश के लिए लड़े, और उनकी हड्डियां दांत किस सिचुएशन में यहाँ पड़ी हुई थी। So this is the close view of the earlier one of the slides. This is the foot of one of the our किस हालत में ये सारी हड्डियां वहां पर कुएं में पड़ी मिली। अब जब सारा सब कुछ बाहर निकाल के रख दिया नॉन साइंटिफिक एक्सकवेशन ने, लोकल पीपल ने, तो इन हड्डियों के बारे में, इन स्केलेटल रिमेन्स के बारे में 4-5 ओपिनियन उभर के आए। पहला ओपिनियन जिसकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अवेलेबल है, जिसका रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है, चाहे ईस्ट इंडिया पेपर्स हैं, चाहे ये बुक है, चाहे बेट्स की कार्टर की बुक है, पंजाब गजेटियर्स हैं, उनके हिसाब से जो मैंने अभी तक डिस्कस किया कि ये रिमेन्स belong to the massacred Indian soldiers killed during 1857 mutiny against the Britishers, whose corpses were dumped into the abandoned well due to the socio-political reasons and sanitary concerns, and the well was filled with the soil. मतलब पहला कंसर्न जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है, जो जिसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अवेलेबल, ये जो नीचे 3 जो बातें लिखी हुई है, these are given by the amateur historians, वो अपने पर्सनल ओपिनियन है, विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस, विदाउट एनी रिटन रिकॉर्ड, नथिंग एल्स। पहला उसमें यह है कि द रिमेन्स बिलोंग टू द विक्टिम ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स अकरिंग ड्यूरिंग 1947 इंडो पाक पार्टीशन। कुछ लोगों का मानना है कि भी ये रिमेन्स 1857 के नहीं है, ये 1947 के हैं, कि जब हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ, भारत पाकिस्तान अलग बने, तो उन्होंने उनको मार के तो ये कुआं खाली पड़ा था, तो ये उसमें उसके रिमेन्स है। ये एक व्यू है। जो तीसरा ओपिनियन है कि भी द स्केलेटल रिमेन्स वर द रिजल्ट ऑफ द सेरेमोनियल ह्यूमन सेक्रिफाइस। वो कहते हैं कि भी उस टाइम पे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होती थी, 1857 में ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होती थी। तो वो जो लोग कहते थे कि भी आप सेक्रीफाइस करोगे तो आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये कह रहे कि भी ये कुआं तो एक सेरेमोनियल सेक्रीफाइसेस का डंपिंग साइट था। तो इसलिए इन 1857 से ना 47 से उसका कोई कंफ्लिक्ट। इस ओपिनियन के भी कुछ लोग हैं जिनको हमने इंटरव्यू किया है, उनके भी ओपिनियन हमारे पास हैं। जो लास्ट है कि भी ये कुआं तो एज ए कॉमन बरियल साइट यूज होता था, क्रिमिनल भी
और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है भी वो जिसको मार के टपका के गिराना है अननोन जो, तो ये सबके लिए एक कॉमन बरियल साइट था, चाहे वो क्रिमिनल मार के गिराएं, चाहे स्टेट जो अथॉरिटीज थी, क्योंकि ब्रिटिशरी थे उस टाइम पे, किसी को मारना है तो वो करके सबके लिए कॉमन बरियल साइट थी। तो 4 ओपिनियन थे इसके जब ये रिमेन्स आके आए, तो एक की ही साउंड फुटिंग थी जो पहला था, उसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे। नाउ हाउ टू प्रोसीड फर्दर। गवर्नमेंट के लिए ये एक मुसीबत खड़ी होगी कि भी जो किताब में लिखा था, जो मीडिया में चल रहा था, टीवी पे चल रहा था कि ये गुरुद्वारे के नीचे ऐसा मिलेगा और ऐसा हो गया। नाउ हाउ टू प्रोसीड फर्दर। सो ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक एनालिसिस वर नीडेड विच वर इम्पार्शल और जो अनबायस्ड without considering any of the 4 above said hypotheses or original theories about these remains. So urgent scientific analysis were needed. So they were handed over to us. I was in a practical class. I received a telephone call from the Secretary Punjab government that the remains have been recovered from a site, and we have searched your profile from somewhere else, and I think you are the best person to do this. I received that call. तो to whom you want to include? मैंने कहा कि भी मेरे प्रोफेसर आर के पाठक मेरे पीएचडी सुपरवाइजर थे, वो मेरे गुरु हैं, तो उनको इन्वॉल्व कर लो। तो विद इन 10 मिनट्स 10 मिनट के बाद गवर्नमेंट की गाड़ी आएगी, दे टेक अस टू द सिविल सेक्रेटरीट पंजाब गवर्नमेंट, और दे डिस्कस्ड अस, दे फॉर्म्ड ए कमेटी जिसमें CFSL के थे, GNDU के थे, FSL जो मोहाली है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग थे। तो उन्होंने 18 पर्सन्स की कमेटी बनाई, एंड on 19th of May in 2014 we visited the site and we submitted our report the next day, and the very next day we were asked to take care of the legal custody of all these remains by the Punjab government. And after 5 to 6 days, I, along with my research scholars, I visited the site, and we tried to preserve the human remains, which can be used for their identification problem. They give us the region, they give us the point that you are to construct the biological profile of these human remains, so that their identification may be done and some opinion may be submitted to the government about this. So we remained there for 5 to 6 or 7 days there, and we segregated the whole skeletal assemblies. और हमने जो दांत, हड्डियां और जो चीजें जिनको हम इमीडिएटली हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते थे, हमने उनको अपनी कस्टडी में लेके हम वहां से आ गए। और कुछ चीजों को हमने वहां पर बड़े बड़े ऑन द साइट हमने बॉक्सेस बनाए, ये बड़े बड़े बॉक्सेस, और हमने वो जो लॉन्ग बोन्स थी, जो रिचेस्ट, जो हालांकि जो उनके स्ट्रेचर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज की जा सकती थी, जो वाइट जो क्लोथ पर्सन है जो पीछे से दादाजी दिखाई दे रहे हैं, वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष थे वहां पर, जिन्होंने ये सारा जिनकी परमिशन से सारा सब हुआ। सो दीज वर द पॉइंट्स, मेडल्स, पॉइंट्स हैं, मेडल्स हैं, और कुछ जो चीजें लेफ्ट साइड में जो लोअर फिगर है उसमें देख रहे होगे आप कि भी कुछ सोने की चीजें भी पड़ी हुई हैं। तो बेसिकली दीज थिंग्स दे बिलोंग टू द फीमेल्स, particularly in those times the older जो फीमेल they used उसको वो यूज करती थी। तो ये बेसिकली ये लिखा गया था, या बाद में इंटरप्रिटेशंस लोगों ने दी कि भी जो फौजी हैं, जो आज भी हमारे फौजी हैं भाई, तो वो अपनी जो नियर एंड डियर वंस की कुछ यादगार की चीज लेके मिलिट्री में जाते हैं, उनके पास होती है। तो ये प्रज्यूम किया गया कि ये चीजें उनकी वाइफ्स की या उनकी होंगी, ये उनकी जेब में होंगी जब उनको मारा गया। तो दीज मेडल्स आप देख सकते हैं कभी भी लेबोरेटरी में आके कि हर एक कॉइन के ऊपर क्वीन विक्टोरिया का फोटो है, और 1856, 1840, 1821, 1804, 1799, तो ऐसे ईयर ऑफ मेक उनके सभी के ऊपर है। कोई भी सिक्का 1856 के बाद का नहीं है। हमारे पास सैकड़ों सिक्के और ये सारे पर्सनल आर्टिफैक्ट्स हैं। तो these were the other bones which were segregated by us and which were taken us within to our laboratory. These are the skull cast, जो ब्रेन का जो पोर्शन है वो सारा ये जो जॉ फ्रेगमेंट्स और जो डिसलोकेटेड टीथ है, बेसिकली these were used
फॉर फोरेंसिक पर्पसेस। ये हमारे पास जो अब राइट नाउ है, जिसके बेस पे हमने पिछले 5 साल से जो रिसर्च चल रही है, जो डिफरेंट साइंटिफिक मेथड से, और जिसके बेस पे हमने रिसेंटली कंक्लूड भी किया है समथिंग वेरी क्रूशियल अबाउट important about these remains, that was possible only the basis of these jaw fragments and the teeth which are in the pictures. You will see that the teeth, आप देख रहे होंगे कि तीसरा मोलर भी है सभी में, सभी जॉ फ्रेगमेंट्स में थर्ड मोलर जिसको हम अक्ल दांत बोलते हैं वो भी आई हुई है। इसका मतलब सारे अडल्ट तो थे जो। और आप दांतों की हालत देखो कि भी आज हमारे दांत कोई भी हैं जो भी हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस लेक्चर, यू कैन ऑब्जर्व दैट हमारे इन जैसे ऐसे दांत हमारे किसी के भी नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे दांत में कि भी जो बिल्कुल कोई उन्होंने कैरीज नहीं, कोई कुछ नहीं है। इसका मतलब वो हेल्दी पीपल तो थे। हमने ये एंथ्रोपोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस की हैं। द हैजार्ड ओवरलैपिंग एंड डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर ऑफ द रिमेन्स इन द वेल सेडिमेंट सिग्निफाइड दैट, मतलब ये कहते हैं कि जो ऊपर नीचे ऊपर ऐसे ऐसे फेंका हुआ है तो उसका मतलब तो ये था कि वो उनको एक ही बार कुएं को एक ही बार में फेंका गया है, जैसा बुक में दैट सपोर्टेड द रिटन इवेंट्स। और उसके बाद प्रेजेंस ऑफ द थर्ड मोलार इन 246 जॉ फ्रेगमेंट्स, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द पीटीआर ऑफ 746 canines and suture closure pattern of the 13 intact skull identified that majority of the Indian victims were adults. Femur heads, calcaneus, temporal portion of the skull and vertebra, clavicle, phalange, they were the better preserved. मतलब अगर पूरे 206 की हड्डियां देखें तो ये सारी चीजें लगभग सभी में, मतलब हमने ये चीजें जरूर मिली, दूसरी टूटी फूटी मिली हो, लेकिन ये चीजें बिल्कुल इंटैक्ट मिली। जिसमें टेम्पोरल ईएम पोर्शन ऑफ द स्कल है, ये हमारे लिए एक क्या बताऊं मैं आपको कि इसमें से जो डीएनए है दांत के बाद, इसमें से क्वांटिटी में सबसे ज्यादा डीएनए मिलता है, और ये हमारे पास सभी 282 के लोगों का है। जो ईएम जिसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस रीजन बोलते हैं, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ डीएनए, एंड जो हमारी करंट रिसर्च है वो इसी के बेस पे हम वी आर एक्सट्रैक्टिंग डीएनए and doing their identification. The gross anatomical features of the intact skulls were apparently distinct, implying that they perhaps belong to the young and mature males from different ethnic groups. ये हमने पब्लिश किया 2013 में, आगे फोटो दी। No evidence supported the opinion that these remains belong to the victims of partisan conflicts during और अराउंड, मतलब एंथ्रोपोलॉजिकली ये सारी चीजें जो एंथ्रोपोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, कुठियाला सर जानते हैं हम कैसे करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन से कुछ भी चीज हमें ये नहीं लगी कि ये रिमेन्स 1947 से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स थे, कॉइन्स और मेडल्स, उस पे किसी पे भी 1856 के बाद का ईयर ऑफ द मेक वो नहीं था। तो यू विल सी द ऑल द स्कल्स दे आर क्वाइट डिफरेंट, तीनों स्कल बिल्कुल अलग अलग हैं, और सभी के जो माथे के ऊपर जो फ्रंटल पोर्शन है उसके ऊपर एक चोट का निशान है, और इनका हमने सीटी स्कैन कराया है जो हमारे पास इंटैक्ट स्कल है। तो इनका और इनके पिछले पोर्शन में अब दिखा नहीं पा रहा, तो जो इसका पीछे वाला जो ओसिपिटल पोर्शन है जो पीछे ये हड्डी, तो उसमें भी ये इसी तरह का जो ये निशान है। तो जो हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इनका पता किया कि ये एंटीमॉर्टम है कि पोस्टमार्टम, हो सकता है कि खुदाई करते वक्त उन लोगों ने यहाँ पर उनका हथौड़ा लगा हो, तो नहीं, ऐसा नहीं मिला, क्योंकि हमने जो इसका जो एक बैलिस्टिक्स का जो रूल है कि गोली मारते तो वो कैसे इंप्रेस होती है बोन, और एग्जिट और एंट्री बोन का जो स्पेसिफिक जो क्लासिफिकेशन है उसके बेस पे हमने इन बोन्स को जो इन क्रेनियल फ्रैक्चर्स को हमने एग्जामिन किया, नॉट ओनली एट माय एंड बट आल्सो विद सम फॉरेन कोलैबोरेटर्स। तो वी केम टू कंक्लूजन दैट ये इंजरी मार्क जो उनके क्लोज पॉइंट ब्लैंक से जो उनको गोली मारी गई थी तो उसके बेस पे, और कुछ के स्कल्स में तो जो बुलेट है वो अभी तक इंटेंगल्ड है। वी हैव देयर सीटी स्कैन्स। Negligible percentage of the dental caries and hypoplasia in the teeth implied that the victims had good dental hygiene and unstressful childhood. So no evidence of animal remains in the assemblies. ऐसा कोई भी animal remains की हड्डियां दांत हमारे पास कुछ नहीं मिला। तो this supported the written reports. Extrinsic black, brown or reddish brown stains were visible on the few teeth. They were suggestive of the tobacco smoking or betel nut chewing or use of the pan masala eating habits, because we have extracted those powders from that and we have analyzed their chemical compositions, and we found that they were the marks of these betel, because modern day individuals may be
वहां के जो उस रीजन के लोग हैं आज भी आपने देखा होगी वो पान मसाला और ये बीटल नट च्यूइंग वो नॉर्मली करते हैं। तो उनके ऊपर भी आजकल नॉर्मल जो उनकी जो डेंटिस्ट्री वाले जो हमारे भाई हैं या बहनें जो भी रिसर्च करते हैं तो उनकी स्टडीज को हमने बेस बना के पाया कि भी उनका केमिकल कंपोजिशन उस टाइम पास्ट टाइम के केमिकल कंपोजिशन के साथ मैच करता है। और उन्होंने लिखा है कि भी ये स्मोकिंग के हैं या बीटल नट च्यूइंग के या टोबैको स्मोकिंग के हैं। तो and the same you will find that same is common in the present day population of Bengal, Bihar, Odisha and some eastern states. Maximum number of individuals was calculated out as 246 as estimated from the count of the mandibular. हालांकि ये बाद में 272 हो गया था। ये हमने इनिशियल 2016 में पब्लिश किया था। उस टाइम हमने जो टोटल दांत जो काउंट किए थे उस टाइम वो 6400 कुछ थे। तो उसके बाद हमने पूरा जो हमारा जब मिट्टी वगैरह जो पूरा को स्क्रीन किया तो उसमें से कुछ दांत और निकले। तो हमने टोटल दांत जो हमारे पास है 9600 कुछ है, बिल्कुल इंटैक्ट बढ़िया क्वालिटी में। और ये माना जाता है, ये क्या है, बिल्कुल सच है ये तो बायोलॉजिकली कि भी एक आदमी में 32 दांत होते हैं। तो हमने टोटल असेंबलेज को 32 से डिवाइड, बिल्कुल सिंपल तरीका है जिसको हम MNI बोलते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, वो हमने कैलकुलेट किया और दैट केम आउट अराउंड 272। लिखा था 282। तो ये माना हमने कि कुछ दांत हड्डियां उस पर कुछ लेके उठा के लेके गए हों लोग। तो मतलब साइंस में इतना तो एरर होता ही है, या क्योंकि कीपिंग इन व्यू ऑफ द circumstances surrounding the excavation of the site, we can assume that some of the teeth and jaw fragments may have been lost during that process. So it also endorses that 282 लोग तो थे। फ्रंटल पोर्शन ऑफ द स्कल हेड पोस्टमार्टम टैपोनोमिक ट्रॉमेटिक सिग्नेचर, आपने पीछे स्कल में देखा कि भी वो कुछ के में था, कुछ स्कल्स में पोस्टमार्टम इंजरीज थी, वो एंटीमोर्टम नहीं थी। हम फोरेंसिक में एंथ्रोपोलॉजी में वी कैन इजीली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एंटी एंड पोस्टमार्टम इंजरीज। हमें वी हैव डीप एक्सपर्टाइज, we are supposed to have deep expertise, we may or may not, but we are supposed to have. So कुछ का पोस्टमार्टम टैफोनोमिक इंजरीज थी, वो शो करता है कि भी इनको नॉन साइंटिफिक एक्सक्वेशन हुआ है। रिटन वर्जन्स अबाउट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कुड नॉट बी कोरबोरेटेड नाइदर फ्रॉम द अवेलेबल डेंटल skeletal remains nor from the preliminary ancient DNA studies. You will see this is the close overlook of these injuries जो मैंने एक स्कल की मैंने आपको बिल्कुल क्लोज व्यू दिखाया। तो ये टैफोनोमिक इंजरी नहीं है, ये बरियल एक्सक्वेशन के टाइम की इंजरी नहीं है, ये एंटीमोर्टम इंजरी है। तो उसके बाद जब इसमें आपने देखा कि भी कुछ डाउट हमारे को क्लियर डाउट हुए हमारे को कि भी एंथ्रोपोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस बिकॉज दे आर सब्जेक्ट टू बायसनेस, दे मे बी सब्जेक्टेड टू बायसनेस। तो उसके लिए हमारे पास जैसे मॉर्फोमेट्रिक मेथड है, DNA मेथड है, तो उन चीजों को हम सपोर्ट करने के लिए ये दो टेक्निक अपनाते हैं, मॉर्फोमेट्रिक और DNA एनालिसिस। या आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक आई है वो स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस भी है, दैट इज यूज्ड वाइडली इन द डेवलप्ड कंट्रीज फॉर प्रोवेंसिंग ऑफ अननोन ह्यूमन रिमेन्स। सो पहली एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्निक अपनाई तो उसमें कुछ हमें डाउट्स हुए, तो उन्हीं डाउट्स को दूर करने के लिए हमने फर्दर जो एडवांस साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो जिसमें ओडोंटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA एनालिसिस है, स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस है, रेडियो कार्बन डेटिंग है ह्यूमन जो टिथ की, तो वो है, तो वो हमने किया। स्टार्टिंग में कुछ फंड्स की दिक्कत आई थी क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे को कुछ पैसा नहीं दिया। तो इनिशियली आई ट्राई टू एनालाइज दीज रिमेन्स फ्रॉम माय ओन रिसोर्सेज, बट देन आई wrote a project to DST serve. At that time the Modi government was there in the seat, so I presented my case before the committee and उन्होंने हमारे को जितना प्रोजेक्टेड मनी था उससे भी 12 लाख रुपए ज्यादा दिया। सो बेसिकली उसी के साथ साथ हमारे को जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो who belong to that particular region, तो एक प्रोफेसर गुरप्रीत गिल हैं, वो कनाडा के अटॉर्नी जनरल भी हैं, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि भी फंड्स की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो दोज पीपल, आई हैव लॉट ऑफ donation offers from the abroad also, but I have sufficient money from the central government of India in the form of DST serve. So
आई हैड कोलैबोरेशन इन द मीन टाइम, जब तक मेरे पास पैसा प्रोजेक्ट आया, इन द मीन टाइम मैंने कुछ लोगों के साथ ईमेल के थ्रू या जो मेरे कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में मिलते थे अब्रॉड में, उनके साथ मैंने साइंटिफिक कोलैबोरेशंस किए विदाउट यूजिंग एनी मनी, and they helped me, a number of people like कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर एरिक बार्टनिक है, और उसी तरह न्यू फाउंडलैंड यूनिवर्सिटी है कनाडा में, और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है जर्मनी में। तो उसी तरह हमारे बिरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज सीसीएमबी हैदराबाद। सो आई कोलैबोरेटेड विद a number of people in the absence of money available with me in initial stages. So I got a number of samples analyzed from their laboratory with their advanced scientific instrumentation available with them. Though we have also established our laboratory for a number of things which have been done with these remains. तो उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया। अब रिसेंटली हमें कुछ रिजल्ट्स मिले डीएनए की भी, और हमने आपको कुछ जर्नल्स में पब्लिश किया है। 2020 में जुलाई से लेकर अभी तक हमने 12-13 पेपर इनके ऊपर पब्लिश किए हैं, एंड वी हैव एस्टैब्लिश्ड देयर आइडेंटिटी। तो एक लेक्चर में इतना बड़ा जखीरा, इतने बड़े जो साइंटिफिक मेथड, जो टेक्निक्स जो हमने अप्लाई किए हैं, वो प्रेजेंट नहीं किए जा सकते। उसके लिए मैं आपको दूसरे में मैं प्रदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि एक और अगर क्योंकि हमने किस एक सिंपल वे में मैं आप सबको बताऊंगी कैसे कैसे हमने इनकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। हालांकि ये थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन रिमेन्स हैं, इट विल टेक ईयर्स, नॉट क्योंकि मेरी लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कि आई विल बी एबल टू डू आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरीवन, बट राइट नाउ जो हमने एनालिसिस किया है, जो 1200-1500 जो स्केलेटल डेंटल रिमेन्स पे जो हमने पूरा एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है, तो उसमें से 99% जो रिजल्ट्स हैं वो इंडोर्स, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उन्हीं को इंडोर्स कर रहे हैं कि भी ये लोग वहीं के थे। क्योंकि हमने जो स्टेबल आइसोटोप और डीएनए का जो मेथड अप्लाई किया है, दैट इज मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट ऑब्जेक्टिव, दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन, एंड दोज रिजल्ट्स हैव बीन पब्लिश्ड वेरी रिसेंटली। So these were my publications which have been each and every paper that you will see that Ajnala skeletal remains. So we have identified, and I will give some. These are the papers which have, and this paper you will see that this paper is of 33 pages. 33 pages are there, and I have got $500 from the publisher of this journal in return of writing this paper. So this is for the first time in Punjab University. As I may be short of my information, but I am the first. I may be the first. I'm not first, but I may be the first person to get money for writing a paper. So this is the paper. It is online. This is also another paper we have published recently. This is another paper. So out of our scientific different scientific methods, so this is the first paper which has used elemental analysis from the bone genetic to estimate age and sex of these people. This is for the first time that elemental composition of the bone genetic has been used for estimation of age and sex of these remains for the first time in Indian literature, and I have filed a patent for that, and I expect that yes. This was our first paper which was published in Bioarchaeology of New Years. It is a very reputed journal in forensic anthropology. Yeah. So all these are very recent papers. I have not mentioned the older papers, but only one paper that is of 2016. All the papers are 2020. So the application of the multiple forensic anthropological methods like odontological and radiological examination, mitochondrial DNA stable isotope analysis, and AMS radiocarbon dating, which was done from a lab in Hungary, they have revealed that the exhumed human remains from Ajnala well were. So these are the concluding remarks. First is they belong to adult males. It is confirmed scientifically. They aged 9.5 to 15 years of age. Nobody was above or below this. एक आधा था जो वो इतना एरर तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन सारे लोग, और दिस इज द एज विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सोल्जर्स और सिपाहीज ऑफ द आर्मी.
दे वर नॉन लोकल टू द साइट। मतलब पहले कहा जा रहा कि वे तो आसपास के लोग हैं, 1947 के लोग, नहीं, एक भी उनमें से जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, एक भी उनमें से लोकल नहीं था, सारे लोग बाहर के थे। दे वर नॉन लोकल टू द साइट। साइट का मतलब अजनाला या आले दुआले के लोग नहीं थे। फोर्थ, दे एट मिक्स्ड डाइट्स। मिक्स का मतलब यहाँ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन थे। मिक्स डाइट का मतलब यहाँ C3 और C4 प्लांट्स होते हैं। तो बेसिकली उनसे मतलब है, जो साइंस से, जो बॉटनी से जो आदमी होगा वो इजीली समझ जाएगा। तो हमने C3 और C4 प्लांट्स, तो उनकी मिक्स डाइट थी। नेक्स्ट है, दे शेयर्ड ए कॉमन ज्योग्राफिक एरिया ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। ये सारे, ये दो जो पॉइंट हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, वी हैव एनालाइज्ड फ्रॉम the stable isotope analysis and they have been published. They shared a common geographic area during their childhood. मतलब around almost similar area, that is northeastern part, that may be eastern यूपी जिसको अवध बोलते हैं, थे उस टाइम पे, या कोस्टल जो बंगाल है, या कोस्टल, कुछ लोग कोस्टल उड़ीसा के भी थे, और एक बंदे का जो डीएनए मिला है वो त्रिपुरा का भी था, और एक कुछ लोग जो मणिपुर मेघालय के भी थे। तो दे, लेकिन ड्यूरिंग चाइल्डहुड दिस एरिया इज कंसिडर्ड एज enjoying the almost similar environmental conditions on the whole. दे जो सबसे सिग्निफिकेंट जो बात आई है वो, दे लिव्ड एट डिफरेंट लोकेशन ड्यूरिंग लास्ट 10 years प्रायर टू देयर डेथ। वो पिछले 10 साल में, मरने से 10 साल पहले वो अलग अलग जगह पे रहे हैं, विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ द आर्मी पर्सनल। The stable isotopic and mitochondrial DNA results endorse the historical accounts that the victims of the 26th Native Infantry Battalion Regiment killed in 1857 at Janala, they came from the states of the West Bengal, Bihar, Odisha, our presently eastern UP, and parts of the Meghalaya, Manipur, and other northeastern and coastal states as potential regions of their geographical affinity. The dates inscribed on the coins and medals, along with the AMS calibrated, जो हमने कार्बन डेटिंग किया उस धातों का, और क्वाइंस को हमने साइड में रखा, तो जो एएमएस डेटिंग, जो हंगरी की जो वर्ल्ड रिनाउंड लेबोरेटरी है एटॉमिक की, उससे कराया, तो उन्होंने, दे वर नॉट इन्फॉर्म अबाउट द डेटिंग ऑफ द बरियल ऑफ दीज रिमेन्स, क्योंकि एएमएस जो डेटिंग है, जो रेडियो कार्बन डेटिंग है, उससे हम एज एट डेथ एंड एज एट बर्थ दोनों निकाल सकते हैं। सो वी कैलकुलेटेड द एज एट डेथ, और एज एट डेथ वाज देयर एज ऑफ बरियल। So we calibrated these radiocarbon dates and they both, चाहे coins के ऊपर है चाहे वो AMS dating, they did show high probability that remains belong to the mid 19th century. It is the unique study in India being conducted at Punjab University, and no other Indian university or institute has such a huge collection of the skeletal remains to be studied forensically. In future, we aim to extend our deep respects and tributes to those departed souls through scientific means by estimating their biological identity as to their age, sex, stature, cause and manner of death, time since death, dietary status, mobility history, geographic affinity, ट्रोमेटिक एंड पैथोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि राइट नाउ हमने कुछ पोर्शन ही स्टडी किया है, लेकिन पूरा का पूरा पोर्शन जो भी डिफरेंट मेथड्स हैं, चाहे एंथ्रोपोलॉजिकल हैं, चाहे वो मॉलिकुलर मेथड है, केमिकल मेथड है, तो एवरी मेथड दैट इज सिग्निफाइंग, दैट इज इंडोर्सिंग द रिटन अकाउंट्स, और यू कैन से हिस्टोरिकल अकाउंट्स दैट द रिमेन्स बिलोंग टू द incident of 1857 as mentioned in different reports. In future, we plan to collect DNA samples and other forensic anthropological information from the skull. The skull का मतलब जो आलमबेग का skull हमारे पास आ रहा है, तो उसके बेस पे हम उसकी आइडेंटिटी पूरी पता है. And we are also getting the list of the martyred soldiers, because I have communicated my request to the British government through British High Commissioner, and a very high functionary in the economics ministry. He is who has last year visited Punjab University also. So he is helping us in getting the list of those martyred soldiers from British Museum History. And some persons, कुछ लोग हैं वहाँ पर, प्रोफेसर हेनरी वैगनर हैं, प्रोफेसर कोडोस हैं, तो they have directly contacted me because they are doing research in imperial history of the Punjab. तो उनको इन रिमेन्स के बारे में, क्योंकि इट इज ए वेरी important event in Indian history, or particularly in the provincial history of Punjab, so they are deeply interested in the results
from these remains, and without that their analysis and their research is incomplete. So they have contacted me to share the detailed results, but I have requested them to provide the list of the martyred soldiers. पहले हमें वो list provide करा दीजिए। उसके बाद क्योंकि उस लिस्ट में सारा सब कुछ लिखा हुआ है, one of them had told me that he has obtained the list, but it will take time because इसमें पूरा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कंट्री टू कंट्री डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात है। तो दैट लिस्ट इज एक्सपेक्टेड थ्रू डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन अवर कंट्री एंड ब्रिटेन। शॉर्टली वी हैव बीन assured that you will get the list. Once we get the list, and then we will visit those particular villages from or areas from where they belong to. We plan to because DST SERB has promised us that we will give more fundings if we want to extend this project. So we plan to collect the blood samples and other biological samples from those villages who historically or knowingly in those villages that they belong to the families of freedom fighters. So then we are our main aim, particularly my जो मेरा दिल से मेरा जो तमन्ना है कि भी ये उन फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया जाए और इन रिमेन्स को उनको सौंप दिया जाए, सो दैट इनका लास्ट बरियल हो जाए एक डिग्निफाइड वे में, जो एक फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट से जो एक्सपेक्टेड है कि भी दे में बी गिवन ए रिस्पेक्टफुल फाइनल एड्यू, सो दैट दे में जो हो गया वो तो हो गया। नाउ इट इज साइंटिफिक वे में हम उनको रिस्पेक्ट नहीं प्रोवाइड करा सकते कि वो अपनी जगह पे जाए। We plan to collect DNA samples and other forensic anthropological information from the skull, and then collect biological samples of the descendants of the martyred soldiers from the places from where they belonged to. And because no change in DNA composition have been anticipated during the last 163 years, as reported in the papers related to genetics. Thank you. Namaskar.